जो थे उन्होंने तो देखा था, जो नहीं थे उन्हें सुनाया गया। कहानी सबको पता है, लेकिन इस कहानी के भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मैं कहूँ एंगल्स हैं जो शायद नहीं पता। कहानी सिर्फ ज़मीनी नहीं थी, आसमानी भी थी। तो उसी आसमानी कहानी को सुनाते हुए आए हैं लेकर ऑपरेशन सफ़ेद सागर कुछ लोग मेरे साथ हैं। वेलकम, वेलकम टू बिग एफएम। Thank you. Thank you very much. सो ये बताइए मुझे, जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तो कितना आपको पता था? जैसे मैंने कहा काफ़ी कुछ पता था, और कितना नहीं पता था अबाउट दैट वॉर? जी भी? इतने डिटेल में तो नहीं पता नहीं। था, बिल्कुल नहीं पता था। जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो इतने डिटेल में तो बिल्कुल नहीं पता था। बहुत डिटेल में, इतना डिटेल है कि आपको इस ऑपरेशन से, इस वॉर से, कारगिल वॉर से 10 साल पहले तक की भी स्कीमिंग जो है वो पता लग जाती है इसको देख के। तो आई थिंक इतनी डिटेल में नहीं पता था, और काफ़ी हिला देने वाले डिटेल्स थे। जो आप नहीं बताओगे ऑफ कोर्स, ताकि लोग शो देखें। देखिए ना, शो आ देखिए गई ना। 7 शो तारीख आ देखें, गई ना, या उसका मज़ा ही वो है जो मुझे या पढ़ के आया था मज़ा, मैं आपको वो हम्म, मज़ा बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो देखने को मिलेगा, यस बिल्कुल। आप समझ रहे हो। जी, सो आई थिंक क्या 7 तारीख आ गई। आ ही गई बस। मेरा यूनिवर्सिटी का दौर था। आई वाज वी वर वेरी, मैं वाकिफ था स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के बारे में कि वो शहीद हुए थे। एंड क्योंकि उस टाइम सौरभ कालिया का भी नाम हम सब जानते थे, सो दैट वाज अ टाइम व्हेन it made us very angry and we didn't know what to do with that anger. But as that, and since that time I'm a history buff, so I've studied a lot about different military operations, this and that. And still, when I read the script of Safed Sagar, I learned very new things. Because it was straight from the Air Force's mouth, and it was about their own. And it is, उस time TV coverage में first war था हमारा, Kargil war. So we were aware of that. But lot of things, unlike with the rest of the armed forces, with the Air Force, it takes much longer for things to get debriefed and become okay to share with the, the public domain. And so the other thing is, a lot of the things that happen in the sky, only the Air Force knows about. It's not the other way around. Like, you can't have a correspondent in another plane saying, यहाँ पे ये हो रहा है. You know, yeah. as simple as that. There's no eyes in the sky. Yeah. So the only people who knew are the people who are bringing you this story. It is with their permission, it is their experience, and I would like to say with their integrity. कि ये, it's not a story that's being told for any wrong reasons. It's being recollected and relived and told for the first time with absolute honesty and integrity. And this is not a, I know the Kargil war was not a very long war. It was not a long stretched war in terms of actual warfare. और उसमें एयरफोर्स का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत कम लोगों को पता है. So I एक्चुअली think- एंड अनफॉर्चुनेटली, नो ऑफेंस, बट जिन लोगों ने बताने की कोशिश भी की, अब जैसे मैं नाम ही लूँ बॉर्डर में, मुझे बस इतना पता है कि जयकिश राव बार बार कह रहे हैं सुबह कब होगी, सुबह कब होगी, लेकिन रात भर में उन्होंने क्या किया और क्या सुबह किया वो हमें देखने को नहीं मिला। और जी. वो शायद उस वॉर मतलब लाइक And there are many things, Rani. many One is, how things, will you you know, show it हाँ. even till today? And In yes, India, nobody has done technically what yeah, Oni Sen and Setu Sar, our yes, cameraman, have done. yes, Nobody has done this before. yes, Where we are trying to show, a pilot, a fighter pilot Yeah, yeah. alone in a cockpit. So we are playing Golden Arrows. Golden Arrows are alone, unarmed, right. unafraid. Yeah. अकेले होते हैं वहाँ पे. There's nobody to your left, nobody to your right, and it's a solo mission almost always, right? So for us to be brought into that world and to hear it with such detail, and today with the technology and the kind of investment that Netflix has backed this project with, and the kind of resources that the Air Force has given this team to be as accurate and authentic as possible. So I think it happened in the right way. So, and what I read from the script, I think we are the first audience of this show. Yeah. And I was completely blown away. Right. Because for me, it's a human relationship drama. It's a human interest story. Every drama is a human No, relation. more मतलब so हम- this, more so this, because if you don't know the person on the ground, Yeah, you're not going to be able to understand what they're doing in the sky. I agree. So we need to know the mind of the person who is in that cockpit. That's what Operation Safed Sagar does. It goes one step further, I would say. It also goes into their families, their homes, their night sleep, their morning rituals, their superstitions, their friendships, their rivalries. It goes into all of those things. I So can it's- feel your investment. Yeah. आप बात No, कर we've रही also हो, been I doing can it for, feel your we've been investment in doing the it for film. 2 years now. Uh, And it's a lot of time, and we've been very, very blessed to meet some people who've
I wouldn't say change the way we think, but reinforce the way we think in very special ways. But I'm sure they'll have their versions of that as well to tell you. एब्सोल्युटली ना, मैं आऊँगी, आप दोनों पर आऊँगी, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने कहा कि जितनी भी आर्मी वाली फ़िल्में बनती हैं, या मैं कहूँ आर्म फोर्सेस पे फ़िल्में बनती हैं, उसमें जो एयरफोर्स का एंगल होता है वो कम दिखाया जाता है। हालाँकि जिमी सर ये नहीं मानेंगे, वैसे कांग्रेचुलेशन सर, आपकी पहला ऐसा किरदार, उसको आज पूरे 21 साल हो गए, यहाँ आज ही रिलीज़ हुई थी, 2005, Wow. 29 Shujita जुलाई। sir, wow, what a friend. एंड इन्होंने अभी तक जितनी भी फ़िल्में की, उसमें से सबसे ज़्यादा आपने एयरफोर्स ऑफिसर का ही कैरेक्टर ज़्यादा प्ले किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने आर्मी और ऐसे आर्मी भी किया, लेकिन एयरफोर्स के कैरेक्टर्स आपने ज़्यादा, ऑफिसर के कैरेक्टर आपने ज़्यादा प्ले किए हैं। या जी सो 25 साल यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बात है. क्या लगता है आपको उस ज़माने की फ़िल्म मेकिंग? शुजीत सरकार थे, हालाँकि उनकी पहली फ़िल्म थी वो, और आज आप एक नेटफ्लिक्स के लिए एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं। फ़िल्म मेकिंग जब इस तरह के टॉपिक्स, कहानी होती है, जिसमें सिर्फ़ मेहनत नहीं लग रही है, बहुत सारी चीज़ें और लग रही है, जो एक नॉर्मल फ़िल्म में शायद उसकी ज़रूरत ना हो। दोज़ एक्सपर्टीज़, दोज़ स्पेशलिटीज़, उसमें कितनी समझ बढ़ी है? नहीं, मेरे हिसाब से आई थिंक व्हेन यू स्टेप आउट टू मेक समथिंग लाइक ऑपरेशन सफ़ेद सागर, इसमें क्या होता है कि आपको अगर कोई पूरी कहानी बता भी दे हुँ। कि भाई इस तरीके से सारा कुछ हुआ था, उसको एग्जीक्यूट करना आसान नहीं होता है। सो आई थिंक इसका नसीब यही था कि इस टाइम पे ये आएगी 27 साल बाद, जब वो टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी जी बिल्कुल. कि हम वो कर सकेंगे। और जैसे हमारे डायरेक्टर अभी कुछ टाइम पहले बोल रहे थे कि सबसे अजीब बात ये थी उनके लिए कि उनके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाली इस तरीके की कहानियों में ये एक रेफरेंस पॉइंट बन जाएगी, ये कहानी। वेरी नाइस। आप समझ रहे हैं, क्योंकि जी, इनके जी। पास कोई रेफरेंस पॉइंट था जी, नहीं, बिल्कुल। बिकॉज वो उस टाइप की टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैंने खुद एयरफोर्स की फिल्में की हैं। हम लोग जब कॉकपिट के सीक्वेंसेस करते थे तो वो 3-4 लोग नीचे से ऐसे ऐसे करके हिला रहे होते थे, तो आपको वो फील आती थी कि ये वो है। हाँ, वही मैं पूछना बट चाहती कि ये आपने की क्या है, ऐसी इसमें फ़िल्में? ये जो टेक्नोलॉजी इस बार लेके आए हैं, उसके अंदर वो सिमुलेटर फील के अलावा एक हाइड्रोलिक सस्पेंशन के साथ फिर कंप्यूटर से प्रोग्राम किया हुआ था इन लोगों ने पूरा सीन। और उसके अलावा पूरी लाइटिंग हमारे कैमरामैन ने मैच की हुई थी कि जब आप अगर इस तरफ को घूमेंगे तो ऑब्वियसली सन का एंगल जो है वो, जो पहले लोग हाथ से ऐसे लेके जाया करते थे, आप समझ रहे हैं? Semicircle trolleys Wow. होते थे. The light will move और to Really? give you तो the वैसे cast of होगा। shadow. कोई हाँ. पत्ते हिलाने वाला क्या था? वाह! जी, तो अभी वो सारा कुछ मैच किया गया था, ये भी कुछ नहीं है। द प्रोग्रामिंग वाज डन इन सच अ वे दैट ये डे सीक्वेंसेस अभी इतने थे, वी हैव कंप्लीटेड देम, नाउ द नाइट वंस। तो नाइट के हिसाब से ऑन द कंप्यूटर, बिकॉज वो 1 महीना लगा के उन्होंने सारा ऑलरेडी लाइट अप किया हुआ था, सब कुछ था, तो विद जस्ट फ्यू बटन्स they could change the lighting to night lighting. But the problem was, us actors, when we went inside for each sequence, it had to be programmed. So The अब whole ये scene is programmed. so एक बार में Trying हमें to करना understand. होता था। हाँ, कैमरे 2, 3, 4 जितने भी लगे होते थे, अगर हम बैठे हैं, अगर तो सिर्फ नॉर्मल फ्लोटिंग सीक्वेंस है तो वो कॉकपिट फ्लोट करती थी ऐसे ऐसे करके, सो दैट इट गिव्स यू दैट फील दैट यू, बिकॉज जब आप flying. एयर में होते हैं हम्म, आप ऐसे नहीं जा रहे होते हैं, हम्म, जितनी भी स्पीड से आप जा रहे हो हल्का सा वो Bounce फ्लोटी होता है। फील जो है वो रहती है, बिकॉज ऑफ द the गैप्स इन wind, द एयर। yeah. The currents, yeah. अब दूसरी चीज़ ये थी कि वो सीन के अंदर आप बैठ गए, अगर मेरे सीन के अंदर ये है कि मैं फ्लाई कर रहा हूँ, ओके नाउ बैंकिंग लेफ्ट, सो वो प्रोग्राम्ड था पहले से, उसने लेफ्ट में घूम जाना है लाइक अ फ्लाइट। हम्म, सो नाउ आई हैव टू मैनूवर माय एक्शंस टू In मैच sync- विद in दैट, sync with the cockpit. In Okay. time. एंड दैट इज नॉट जस्ट कि अच्छा ये एक्शन हो गया कट, वो पूरा सीन, अगर 3 पेज का 4 पेज का वो सीन है और उसमें 4 पायलट्स हैं और सबके सेपरेटली शूट हो रहे हैं, तो हर इंसान को उसकी पूरी रिहर्सल करके उसको मैच करना, उसका सारा कुछ करना, एंड द होल थिंग वुड बी शॉट। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग yeah. It's like a very delicate dance. way Yeah. to do it, but ये Very टेक्नोलॉजी intricate पहले yeah. हाँ. या ये टेक्नोलॉजी पहले अवेलेबल नहीं थी। और अगर हम सही टाइम पे बैंक नहीं करेंगे तो सर पे लगता था. Hmm. Okay.